Good afternoon to all of you. Welcome to Shriram's IES. Today, in our series of 1 PYQ a day, we'll be taking up essay. Okay, and we'll be transitioning into 2023 essay, which is of course a lot of philosophical essays came this year also. Okay, and before starting the very first essay, which came in 2023 UPSC CSE mains, I must tell you about the offer of 1:1 mentorship which is available in Shriram's IES. You can come to Shriram's IES and you can even talk on phone through an academic mentor which will help you to shape up your UPSC journey in a judicious way. Okay, so let's get into the topic of today. The topic of today and the essay topic which we are going to talk about is thinking is like a game. It does not begin unless there is an opposition team. See, try to understand. It's a very good topic. And a lot of students even wrote this particular thing because there was a lot of scope of adding and talking about things in this particular essay. Now, what were those scopes? We'll get on that. But first we need to understand what does this particular topic mean. इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे आप समझ ही रहे हैं, इसका चिंतन एक तरह का खेल है. यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष में ना हो, पक्ष ना हो या पक्ष में ना हो. See, try to understand this topic basically requires you to have critical thinking about this everything which is going on in the world. Now, what does critical thinking mean? पहले तो वो जानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए. और सबसे पहले जरूरी है इंट्रोडक्शन को स्ट्रक्चर करना. एक ऐसे का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू कैरी करता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. दिस इज वेयर essay is different from a GS answer. In a 150 word answer, I mean to say a 10 marker question, if you're writing an introduction, so very soon you come on the body of the answer, which is the real answer to the question. तो वहां पर स्कोप रहता है आपके पास कि आपने कुछ गलतियां अगर इंट्रोडक्शन में की भी हैं तो उसको आप बॉडी में भरपाई कर सकते हैं. लेकिन ऐसे केस में ऐसा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है और अगर आप ये नहीं समझा पाते हैं कि आपको ऐसे का टॉपिक समझ में आया है, देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू मेक द इवेल्युएटर और bind the interest of evaluator in your essay. And essay is about the flow, essay is about the interest which a person who's reading it is going to take in that particular essay. So that's why you need to decode the meaning of this particular essay topic. And what is the real meaning of this essay topic? अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो what we'll find is that the lot of things which are associated with thinking. थिंकिंग जो है उसका बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड है और थिंकिंग जो है बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है. कैसे इन्फ्लुएंस होती है? जैसे टेंशन हो गया, जैसे कॉन्ट्रडिक्शंस हो गए, डाउट हो गया, चैलेंज हो गया, डायलॉग हो गया. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, किसी भी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं. एंड दीज ऑल एस्पेक्ट्स यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन. जब तक आप इंट्रोडक्शन में ये बात नहीं समझाएंगे कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक किसी भी इंसान की सोच या सोच पर से को इन्फ्लुएंस करती हैं, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू रीच और मीट द डिमांड ऑफ दिस एसे टॉपिक. एंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस यू नीड टू मेक द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड और द रीडर अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग हैज वेरियस डायमेंशंस, वेरियस एस्पेक्ट्स. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एंड यू कैन इवन स्टार्ट विद पर्सोनिफिकेशन ऑफ द होल एग्जाम्पल. जैसा कि मैं पहले भी ऐसे की सीरीज में आपको बता चुका हूं कि यू नीड टू पर्सोनिफाई. अपने खुद के एग्जाम्पल्स आप देते हुए भी समझा सकते हैं कि किस तरीके से थिंकिंग जो है वो डेवलप हुई आपकी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. Say you went somewhere, you came for UPSC preparation and then you met various kind of people, and through those various kind of people your thinking developed. But how did it develop? It developed through doubts, through contradictions. Say you had some particular notion about the society and someone with a different notion came to you and told something different about you, and that's how your thinking developed. All these things you can very well mention in the topic. And you need to mention that also. Why you need to mention that? Because unless you mention all these topics, all these things, then the person who is reading your essay will not be able to understand that were you able to understand the meaning of the essay or not. So that's why the introduction should be shaped up in this particular case in which you would make the evaluator understand that thinking involves a lot of dimensions. Unless and until you have contradictions over something, ये चीज पर कोई विरोधाभास है ही नहीं. अगर if you don't have any विरोधाभास something, then how will that thinking develop? वो जो सोच है वो पुख्ता है कि नहीं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन से डेवलप करेंगे, ये डाउट से डेवलप करेंगे. अदरवाइज तो सीधी सीधी सोच चलती चली जाएगी और वो जो सोच है वो सोच के कैटेगरी में भी लाई नहीं कर पाएगी. ओके, सो दैट्स व्हाई दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू मेंशन. और जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, एक थोड़ा मेटाफोरिकल किस्म का ऐसे है. ओके, इट हैज अ फिलोसफिकल टेक. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू एलैबोरेट ओवर द डायमेंशंस अंडर विच थिंकिंग कम्स. And that's why I'm repeating the same thing time and again, because this is how you need to structure the introduction of this particular essay. Okay?
Now, once the introduction is done, let's get into the body of the essay. In the body of the essay, through various aspects, you need to explain that how a thinking gets developed. Okay, and if it is not getting developed through various dimensions, then can we even call it thinking? What I mean to say is that without the opposite team, without the existence of opposite team, can a thinking be even called a thinking? So that's why you get to delve into various aspects which basically focus on how a thinking develops in the presence of an opposition. और सबसे पहले इसके अंदर जो एस्पेक्ट आपको एक्सप्लोर करना है, जो आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करना है, वो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है. ओके, फिलोसफिकल एसे में फिलोसफिकल एस्पेक्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. ओके, और इसमें सबसे पहली चीज जो आप ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि थीसिस, एंटीथीसिस और फिर थीसिस, इसका जो हेगल का हाइपोथेसिस है उसको आप यूज कर सकते हो. आप हेगल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना, और फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, एज फार एज GS4 में पढ़ा होगा आपने. ओके, बिकॉज इट इज अ फिलोसफर, ओके, अ पॉलिटिकल थिंकर. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू गेट इनटू थीसिस, एंटीथीसिस एंड थीसिस. कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर जो सोच है, उसके जो अपोजिंग सोच है, उन दोनों बातों में जाकर एक पुख्ता सोच की तरफ आप बढ़ सकते हो. एंड दैट्स व्हाट हेगल सेड. And you need to include these things because unless and until you will write about some substantial political thinkers or political philosophers, your argument won't be supported. आपको अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करना है और इसके लिए आपको इस तरह के एग्जांपल्स देने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स. ये तो बहुत ही फेमस है. जो सोफिस्ट्स, जिनसे कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड आया है, सोफिस्ट से जब डायलॉग होते थे उनके, तो दे यूज्ड टू, द सोक्रेट यूज्ड टू यूज डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है, मैं ये पहले भी ऐसे सीरीज में आपको समझा चुका हूं कि एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में आप डायलेक्टिक्स हर बार यूज कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में तो यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट्स इंपेरेटिव दैट यू यूज दैट थिंग इन दिस ऐसे. व्हाई? डायलेक्टिक्स बेसिकली मींस दैट से देयर इज सम थॉट and there's some people who are in the favor of that particular argument, then you need to stretch them against that argument till the end, and then when they are convinced that they are completely and fully convinced that they are against the argument, then you'll have to bring them back for the argument. कहने का मतलब ये कि एक आपको पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो जाना है. पहले उस आर्गुमेंट को एक इस तरफ लेके आना है कि हाँ, जैसे सपोज की एग्जांपल देता हूं, क्या इंडिया के लिए कल्चर डाइवर्सिटी अच्छी है? सपोज कीजिए आपके सामने जो लोग बैठे हैं, जो आपसे वाद विवाद कर रहे हैं, पीपल हु आर डिबेटिंग, डिस्कसिंग विद यू, दे सेड नो, डाइवर्सिटी इज नॉट गुड. देन यू विल हैव टू ब्रिंग देम बैक विद वेरियस आर्गुमेंट्स, नो, डाइवर्सिटी इज गुड. एंड वंस दे आर कन्विंस्ड दैट डाइवर्सिटी इज गुड, यू नीड टू टेक देम बैक दैट डाइवर्सिटी इज नॉट गुड फॉर यू ऑल. सो दैट इज हाउ यू नीड टू ऑपरेट, एंड दैट इज व्हाट डायलेक्टिक्स इज कॉल्ड. और ये डायलेक्टिक्स से होता क्या है? देखिए, डायलेक्टिक्स जो है ये बस रिटोरिक का एक तरीका नहीं है. डायलेक्टिक्स इज मोर टू डू विद, through this process of dialectics, taking a person from one particular chain of thought to the opposing chain of thought, you come across all the aspects which are available in that particular argument. और जब सारे aspects clear हो जाते हैं तो एक thinking develop होती है, और यहीं पे आप substantiate करेंगे, relate करेंगे to the topic of the essay that the existence of opposite team is very much important for the development of a viable thinking. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है अपने उपनिषद का. उपनिषद के अंदर भी शास्त्रार्थ का कंसेप्ट हुआ करता था. जैसे आप जानते हैं, शास्त्रार्थ पहले हुआ करता था, ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा एंशिएंट इंडिया में, कि जब 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जब शंकराचार्य साउथ से बढ़े टूवर्ड्स द नॉर्थ, तब उन्होंने शास्त्रार्थ का यूज किया सो एज टू रिवर्ट पीपल बैक टू हिंदुइज्म. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, Indian subcontinent was majorly Buddhist. So later on, this whole reverting thing was done by Shankaracharya through these processes of शास्त्रार्थ, और वो उपनिषद ड्रिवन ही था. तो उपनिषद के अंदर भी एक बात की एक्चुअल सच्चाई तक पहुंचने के लिए शास्त्रार्थ में एक अपोजिट टीम को सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है. शास्त्रार्थ आप करेंगे किससे अगर अपोजिट टीम ही नहीं है? इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग एन अपोजिंग आर्गुमेंट, देन whom are you going to argue with? So that's why these all things are very much important, and you can give the example of Upanishads and the Shastra system because it will relate your essay topic to our ancient history, which will be very, very good, and it will bring out your essay as a very relevant one as compared to other students' essays. Got it? Next is Jainism, अनेकांतवाद
many truths, basically not many truths but many ways to reach the truth. Now what are those ways? वो जो ways हैं वो opposing ideas हैं. Those are opposing ideas. Now unless and until you have opposing ideas, you can't reach the real truth. And that's what Anikantwad says, that there are many ways to reach to the real truth, and those ways might be very varying, maybe opposing to each other, but still you will reach the real truth through these processes only. And that's what written in Jainism traditions also. There are other ways also, like अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर गांधी जी और टैगोर, इनकी भी सोच में काफी डिफरेंस था, लेकिन स्टिल यही डिफरिंग सोच के कारण ही वी अचीव्ड आवर फ्रीडम इन द वे वी अचीव्ड इट, जो कि अपने आप में एक होल वाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए एक सिंबल बन के निकला. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन टेल इन द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे टॉपिक. These all things will help you to justify that to develop a particular thinking you need opposing team. Okay, and all these examples are in that context only. Okay, जैसे कि philosophical वाला है वैसे ही scientific भी है. Try to understand, sorry, cognitive भी है. Cognitive में क्या है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, सबसे पहले तो cognitive dissonance कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो differing सोच है उसके बारे में, या different thought जो है उसके बारे में सोचते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, then it will be easy for you to comprehend a particular topic. जैसे कि मैं डायलेक्टिक्स के केस में आपको बताया, तो काफी कुछ डायलेक्टिक्स का तरीका जो है वो ही कॉग्निटिव डिसोनेंस में यूज हो सकता है, जिसके थ्रू एक मुद्दे का, एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाते हैं. जैसे कि आप जानते ही हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर डिबेट एक्लेमेशंस ये सब होते हैं, उनके पीछे रीजन ही यही है, सो दैट एवरीवन who is studying in that university or studying in that course must be able to understand all the aspects of it, because अगर सारे aspects एक मुद्दे के नहीं क्लियर होंगे तो तब तक हम उसके एक्चुअल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे. Another part of it is critical thinking. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, this whole topic is about critical thinking, जिसमें कि बहुत सा एग्जांपल डिबेट सोसाइटीज का है. आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में डिबेट सोसाइटीज हुआ करती थी. वो डिबेट सोसाइटीज का बेसिकली पर्पस क्या था? पर्पस केवल उस डिबेट को जीतना मात्र नहीं था, बल्कि सारे डिफरिंग व्यूज को सुनते हुए एक सर्टेन कंक्लूजन पे आना था, एक सर्टेन थिंकिंग पे आना था. तो ये सारी की सारी जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा इस एसे में, सो एज टू मेक द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ योर ओन डिबेट सोसाइटीज. यहां पर पर्सोनिफाई कर सकते हो आप. हाउ कैन यू पर्सोनिफाई? यू कैन पर्सोनिफाई इन द वे दैट यू कैन talk about some essay topic, some debate topic which was given to you in school, and how even while preparing for the motion or for the argument, you were able to, during the process of the debate, you were able to understand the other aspect also which was against the motion. जैसा कि स्कूल्स में होता है, कभी भी स्कूल्स में या कॉलेजेस के डिबेट सोसाइटी जब होती है, डिबेट्स होती हैं, तो उसमें फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन होता है. लेकिन आप ये बात को समझिए, जो फॉर द मोशन के तैयार किया हुआ है वो भी डिबेट के दौरान अगेंस्ट द मोशन के कंसेप्ट को भी समझ पाएगा और इसके थ्रू उस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर पाएगा और एक पर्टिकुलर थिंकिंग डेवलप कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई दीज ऑल थिंग्स कैन बी मेंशन्ड इन योर एसे व्हिच विल हेल्प you to make the evaluator understand that you have understood the topic. Okay. Another aspect is scientific perspective. साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर एक तो है न्यूटन वर्सेस आइंस्टीन. फिजिक्स को लेके जितनी भी सोच डेवलप हुई है उसमें न्यूटन और आइंस्टीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उनके जो डिफरिंग व्यूज थे उसका बहुत बड़ा रोल है कि आज हम जो फिजिक्स पढ़ पाते हैं, जिस कारण से या अप्लाई कर पाते हैं, उसमें ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो अपोजिंग व्यूज है, इन्होंने रोल प्ले किया था. There are other things like that also, like as you can see Edison's experiment. Edison ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. थॉमस अल्वा एडिसन, probably the most important inventor in the history of inventions. बल्ब भी किया, I guess other चीजें भी की. तो how was he able to develop all these things? Through various failed experiments. और ये सारे के सारे failed experiments क्या है? They are like an opposition to his actual experiment. See, as Edison says that after 1000 experiments he was able to make bulb. तो उसमें कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी रहे होंगे जो अपोजिंग व्यूज रखे होंगे, जिसका अपोजिट तरीका होगा उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने का. और ये जो अपोजिट तरीका है, दिस ओनली हेल्प्ड हिम टू रीच द सही तरीका.
और ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स देकर भी आप अपने एसे को जस्टिफाई कर सकते हो। वैसे ही जो प्रेजेंट डे इशू चल रहे हैं एआई को लेकर, जिसमें कि एथिक्स की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, तो वहां भी आप पाएंगे कि देयर आर डिफरिंग व्यूज अबाउट एथिक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी जो है वो एक बार जब आगे बढ़ जाती है उसको वापस आना बड़ा मुश्किल है, और एआई के बहुत अच्छे यूजेजेस है। सो दैट्स व्हाई दीज डिफरिंग व्यूज आर गोइंग टू गेट involved in evolving a very efficient AI which is going to help the human civilization rather than being counterproductive. इस तरह के एग्जांपल्स को इंक्लूड करके you can literally justify what you want to say to the evaluator and you can include all these scientific aspects in your essay. Okay? वैसे ही जैसे ये है, इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस कैसे? हम सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं डेमोक्रेसी का। अगर अपोजिशन ही ना हो डेमोक्रेसी में, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, आप में से काफी सारे बच्चों ने, और आई गेस फिलहाल कुछ पढ़ भी रहे होंगे, उन्होंने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि अपोजिशन हैज गॉट टू प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। अगर अपोजिशन ही नहीं होगा तो फिर चीजें आर्बिट्ररी हो जाएंगी। देयर विल बी नो वन टू अपोज अ बैड पॉलिसी इन द पार्लियामेंट। तो वहां पे अपोजिशन टीम के कारण, because of the presence of opposition team, a good legislature, an efficient legislature, an efficient law will be drafted. If opposition will not be there, then these kind of legislatures will not be able to be evolved, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसमें कि अपोजिशन टीम जो होती है वो आपको चेक में रखती है। और इसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, इकोनॉमी कट मोशंस का, पॉलिसी कट मोशंस का आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। उसके अलावा और भी चीजें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, आप जान ही रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी चीजें की गई थी, बहुत सारे डिबेट्स किए गए थे, इसमें कि नेहरू, अंबेडकर और इस तरह के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनके अपोजिंग व्यूज थे, और इन्हीं अपोजिंग व्यूज के कारण हमारे पास एक प्रोफाउंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो पाया। और ये प्रोफाउंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आप देख ही रहे हैं आज के टाइम पे और पीछे कुछ सालों से कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव फ्रेम्ड, इट हैज बीन फ्रेम्ड थ्रू द हेल्प ऑफ और थ्रू द वर्क ऑफ अपोजिंग आइडियाज, and those opposing ideas were debated in the Constituent Assembly, and it helped the constitution makers to develop a critical constitution for all of us. So all these examples you can include in your essay, the body of your essay, which will be able to justify to the evaluator that you have understood the topic. Okay, next is media, judiciary, civil society. All these factors of the democracy or the pillars of the democracy, kahin na kahin they work in opposite direction to reach to one single goal, to achieve growth and development. इस तरह के आइडियाज, जैसे मीडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। मीडिया का रोल है कि जब भी सरकार कुछ गलत करती है उसे अपोज करना, जब सरकार कोई अच्छा करती है उसे अप्रिशिएट करना, तो इन सारी चीजों में मीडिया का रोल बढ़ जाता है। वैसे जुडिशरी इज ऑल्सो देयर टू कीप द लेजिस्लेचर इन चेक, द एग्जीक्यूटिव इन चेक। आर्बिट्ररी नेचर को चेक करने के लिए जुडिशरी का रोल आ जाता है। तो आप समझिए इस बात को कि ये जो अपोजिशन का कंसेप्ट है, it is helping to evolve a dynamic democracy in India. और कभी कभी जब हम कहते हैं इतने सारे डिबेट, डेक्लामेशन, डिबेट्स और डिस्कशंस जो है दे आर बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम, नो दे आर नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, दे आर देयर टू डेवलप अ वेरी प्रोफाउंड एंड रोबस्ट सिस्टम फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव इन। ओके, तो इन एस्पेक्ट्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ऐसे टॉपिक के अंदर, आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच कैन बी हेल्प यू टू ऐड वैल्यू टू योर एसे। देखिए ये सब पूरा का पूरा जो ऐसे टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे, आई विल शो यू अगेन। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। आप समझिए इस बात को, जब इस एसे के एंड में इफ यू कैन मेंशन दैट डज थिंकिंग ऑलवेज नीड अपोजिशन, तो आप इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के जनरल आइडिया को ही क्वेश्चन कर दे रहे होंगे। And this will be a value addition feature in this particular essay topic for you, all of you. और इस पर्टिकुलर मुद्दे को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब आप बात करेंगे मेडिटेशन की, we have a trend, we have a history, legacy of meditation. गौतम बुद्ध
ने पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हुए दुनिया भर की जो नॉलेज है उसे अर्जित किया था। ऐसे ही महावीर का भी एग्जाम्पल है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ मेडिटेशन एंड एक्चुअलाइजिंग और रियलाइजिंग द रियल ट्रूथ थ्रू मेडिटेशन, जिसमें अपोजिशन टीम कोई नहीं है। तो यहां पर आप इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के जनरल आइडिया को ही अपोज कर रहे होंगे, विच विल इन टर्न जस्टिफाई द ऐसे टॉपिक। तो आप इसको एज ए वैल्यू एडिशन फीचर अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं, और वहां पे आप बात कर सकते हैं अबाउट द अपोजिशन ऑफ आइडियाज विद इन अ पर्सन, which the person tries to analyze or evaluate while meditating, while being in solace, while being isolated from the society. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं आप, कई चीजें होती हैं जिसमें आपको डाउट आ रहा होता है। जब रात में सोने से पहले आप लोग लेटे होते हैं, उस टाइम पर यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, you try to make some sense out of it. There must be some differing ideas in your own mind, because more you study, more these kind of things will happen to you, that why this happened, why that happened, अगर ये ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। तो ये चीजें सोचते वक्त, ये द्वंद्व जो चलता है दिमाग में, उस टाइम पे you are trying to reach to a particular thought। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन का भी रोल वही है कि जो अपोजिशन टीम है वहां पे, उसमें वो आपको खुद को ही खड़ा कर देता है। और जब आप इस तरह के पॉइंट्स को अपने ऐसे में इंक्लूड करेंगे, तो इट विल हैव अ वेरी गुड इंपैक्ट, बिकॉज इट विल टेल अबाउट यू दैट यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड द कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक ऑल्सो, दैट डज अपोजिशन टीम रियली रिक्वायर इन एवरी केस टू डेवलप थिंकिंग। तो इसको आप इंक्लूड करके अपने ऐसे को और प्रोफाउंड बना सकते हैं। ठीक है, एट द एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन। और जैसे कि आप जान ही रहे हैं, कंक्लूजन जो है उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यू कैन लिटरली समराइज ऑल द थिंग्स विच यू मेंशन इन द बॉडी। सी यहां पर जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू एडिशन चीज कहने का मतलब कोई कोटेशन डालने की कोशिश अगर करेंगे, तो आपको उसको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं इस केस में आपके सारे के सारे बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं, जितने एस्पेक्ट्स हमने बात की, चाहे फिलोसफिकल हो, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे पॉलिटिकल सोशल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, इसकी समरी रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू समराइज योर बॉडी of this particular essay topic, you will not be able to do justice to this conclusion. Of course you can add some quotes, but it must be related to the summary of all the aspects which you touched in the body of the essay. Okay, and that's how this particular essay should be tackled. I expect you all to write essay. Try writing this particular essay topic and send it to us, and we'll be taking care of it. We'll be evaluating it and we'll be discussing it in the next session when we come in front of you. Okay, thank you.